ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب زین شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شدید غصے میں داخل ہوا تھا۔ نظر نورالعین کے چہرے پر پڑتے ہی ٹھہر گئی۔ وہ بے خودی میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھے گیا۔ یہ وہ چہرہ تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا، پر نہ جانے کیوں اب 17 سالہ نورالعین اسے خوبصورت لگنے لگی۔ نورالعین جو نماز پڑھ کر آئی تھی، کمرے میں زین کو دیکھ کر پتھر ہو گئی۔ زین شاہ تو 2 مہینے سے شہر تھا۔ وہ زین شاہ کو دیکھ کر کمرے سے نکلنے لگی، جب زین شاہ نے اسے بازو سے پکڑتے دیوار سے لگایا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جو گھبرائی سی تھی سہم کر بازو چھڑانے لگی۔ تم جانتی ہو نا میں شدید نفرت کرتا ہوں۔ اگر آئندہ مجھے اپنی شکل دکھائی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اسے باہر دھکا دیا، لیکن اسے خدشہ تھا اگر وہ اسے کچھ اور دیکھتا تو خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ زین جیسے ہی حویلی کی حدود کے اندر داخل ہوا، اس کی نظر لان میں بھیگتی ہوئی نور پر پڑی، جو دنیا جہان سے مکمل طور پر بیگانہ ہو کر اپنی ذات میں اس حد تک مگن ہو گئی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے بھیگتے وجود کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ فرقان تھا، اس کے چچا کا بیٹا، جو اپنی بالکنی میں کھڑا تھا اور اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زین کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس لڑکی کے سر پر جا کھڑا ہوا، اس کا بازو زور سے پکڑا اور اسے جھٹکا دیا۔ وہ اس کے سینے سے جا کر لگی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زین یوں وہاں پر چلائے گا۔ دونوں اس وقت بارش میں بھیگ رہے تھے۔ فرقان نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں زین کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ اس کا دل بری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ زین کو دل ہی دل میں گالیاں دیتا وہ اپنے کمرے کے اندر چلا گیا، جبکہ اب وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ بارش کے قطرے تیزی سے نور کے چہرے کے اوپر گر رہے تھے۔ اس سے آنکھیں کھولنا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ زین اس کے معصوم سے چہرے کو گھورے جا رہا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم میری عزت کا خیال کر لو۔ آخر دوسروں کو اپنا جسم دکھا کر تمہیں کیا ملتا ہے؟ وہ اس قدر نفرت سے بولا تھا کہ نور کو اپنی جان وجود سے نکلتے محسوس ہوئی تھی۔ آپ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے الفاظ سامنے والے شخص کو کس حد تک زخمی کر دیتے ہیں۔ اس نے ایک چھوٹا سا احتجاج کیا تھا، تو اس شخص کو ایسی حرکت ہی نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں اسے اس طرح کی باتیں سننے کو ملے۔ نور نے اپنا بازو چھڑایا اور تیزی سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہے تو یہ نفرت اپنے دل میں ہی رکھیں۔ بار بار اس بات کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی میں کبھی آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر پاؤں گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے تکلیف دینا شروع کر دیں۔ زین کے الفاظ نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ بہت دکھی نظر آ رہی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور بارش کے قطروں میں ہی گم ہو رہے تھے۔ زیادہ ڈرامی بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں کچھ کہتا ہوں تو تمہاری بہتری کے لیے کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر زین نے فرقان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تمہیں بالکل بھی خیال نہیں، لیکن وہاں پر وہ ذلیل انسان کھڑا تمہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا، یا پھر شاید تمہیں پتا ہی ہوگا، اسی لیے تمہیں بارش میں جھوم رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت کمرے میں جاؤ، دوبارہ مجھے یہاں پر کھڑی نظر نہ آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے وہ وہاں سے بھیج چکا تھا، اب خود ہی اکیلا وہاں پر کھڑا فرقان کے انجام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کافی عرصے سے وہ اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے سبق سکھاتا۔ نور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آنے والے فرقان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا اور اس کے چچا کا بھی بیٹا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے زین کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ زین پھر سے نور کو تکلیف پہنچائے گا، اور اب وہ اس کا جھوٹا ہمدرد بننے کے لیے اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا نور،
तुम क्यों रो रही हो? उसने नूर के भीगे वजूद को आंखों के रास्ते दिल में उतारते पूछा, जबकि वो उसकी नीयत से मुकम्मल तौर पर अनजान फूट फूट कर रोने लगी। जैन ने फिर से मुझे बातें सुनाई हैं। उसने मेरे किरदार पर इल्जाम लगाया है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उससे दूर रहो। आखिर तुम कब तक उस इंसान के सहारे जीती रहोगी? तुम खुद से ही सोचो। पहले तो वो तुम्हें छोड़कर चला गया और अब जब वापस आया है तो तुम्हें फिर से तकलीफ पहुंचा रहा है। मैं क्या करूं फुरकान? मेरा दिल मेरे अपने काबू में नहीं है। मेरा दिल उस पर बहुत बुरी तरह से फिदा है। मैं उससे बेतहाशा प्यार करती हूं। अगर मैं ये कहूं कि उसके बगैर मेरे लिए रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो इसमें कुछ झूठ नहीं है। वो इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि इंसान को जो इंसान अच्छा लगे उसी से शादी करे। बाज़ औक़ात इंसान को अपना आप उसके हवाले कर देना चाहिए जो उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि चाहने से ज्यादा चाहे जाने का एहसास खूबसूरत होता है। वो अब उसे समझदार लोगों की तरह मशवरे दे रहा था, जबकि उनके इस खराब ताल्लुक के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ फुरकान का ही था। रशीदा बेगम ने जब अपनी बेटी को इस आवारा कज़न के साथ खड़े देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उनके पास गईं। फुरकान, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार कहा है जनान खाने में मत आया करो, मर्दान खाने में ही महदूद रहा करो। चच्ची जान, क्या हो गया है आपको? क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था जब इसे रोते हुए देखा। उसने सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया था और फिर खुद से फरार हो गया। नूर बुरी तरह बौखला गई। उसने हैरत से फुरकान को देखा जो उसकी नजरों के सामने से ओझल हो गया था। वो एक बार फिर से वहां से चला गया था। वो और उसकी मां ही खड़े थे। तुम उसके साथ क्या बातें कर रही थी और कौन से रोने रो रही थी? तुम्हें बताया भी है कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगता। जैन भी इसके बारे में अच्छा नहीं सोचता। इसने शहर में बहुत से आवारा लड़कों के साथ घूमते फिरते उसे देखा है। उसके अलावा ये शहर जाकर वहां की मासूम लड़कियों को परेशान करता है। तुम कैसे एक ऐसे इंसान के साथ इतनी आसानी से बातचीत कर सकती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो उसे बुरी तरह से डपट रही थी, जबकि वो उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। यही इंसान मेरे साथ था जब आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। जब वो बोली तो उसका लहजा दर्द से चूर था। देखो बेटा, हमें से किसी ने भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था। तुम्हें संभलने के लिए थोड़ा वक्त दिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि हम तुमसे मुकम्मल तौर पर अलग हो गए हैं। अभी जान जो कुछ भी था, मगर वो वक्त मैंने बड़ी मुश्किल से काटा था। अगर उस वक्त मेरे साथ फुरकान ना होता तो शायद मैं अपनी जान ले लेती। जिंदगी में पहली बार रशीदा बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्हें अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, और अब उनके पास पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सब कुछ उनके हाथों से निकल चुका था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को समझा सकती थी, मगर उनके समझाने का भी कोई फायदा नहीं होना था, क्योंकि इस लड़की के दिल में सब लोगों के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई थी, जिसको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। रात के वक्त वो अपने कमरे में लेटी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बेसाख्ता निगाहें उठाकर देखा। अंदर आ जाओ। उसने कमरे में दाखिल होने की इजाजत दे दी। दरवाजा खुला और जैन अपनी मगरूर चाल चलता कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर वो जल्दी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। इस वक्त वो दुपट्टे से बेनियाज थी। बेचारगी से उसने सोफे की तरफ देखा जहां पर उसका दुपट्टा पड़ा था। डीप ब्लैक गले वाली शर्ट में उसका हुस्न वाज़ेह हो रहा था। वो किसी का भी ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी। उसने अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश की। ये सारी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। मैं ईमान का इतना कच्चा नहीं हूं कि पिघल जाऊंगा। जैन ने नफरत आमेज लहजे में कहा। आप यहां पर क्यों आए हैं? उसका अंदाज नूर को पसंद नहीं आया था, इसीलिए उसी की तरह तीखे लहजे में बोली।
तुम्हें ये बताने आया हूं कि अगले हफ्ते हम दोनों की रुखसती है। मैं तुम्हें लेकर अपने साथ कश्मीर जा रहा हूं। ये खबर नहीं थी, बल्कि बम था जो उसके सर पर आ गिरा था। वो बेयकीनी से इस जालिम इंसान के चेहरे की तरफ देखने लगी, जो एक हफ्ता पहले तक उसे शदीद नफरत कर रहा था और अब रुखसती की बात कर रहा था। आप लोग मुझसे शदीद नफरत करते हैं? उसने एक अनजाने अंदेशे के तहत पूछा। बिल्कुल, मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूं और ये नफरत कभी कम नहीं होगी। वो एकदम से शर्मिंदा हुई थी, फिर खुद पर काबू पाते गुस्से से पूछने लगी, अगर नफरत करते हैं तो फिर रुखसती क्यों करवा रहे हैं? ताकि मेरी जान तुमसे आराम से इंतकाम ले सकूं। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें यूं आजाद तो नहीं छोड़ सकता। जब तक तुम्हें अपने किए की सजा नहीं दूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। हम दोनों का निकाह हो चुका है, तुम मेरी बीवी हो। अब सिर्फ और सिर्फ रुखसती की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। लेकिन अगर तुम्हें रुखसती नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यूं ही अपने साथ ले जाऊंगा। और मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूं कि इस हवेली का कोई भी शख्स हम दोनों को रोक नहीं पाएगा। आप मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, आप मुझे नहीं चाहते, तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? वो तड़प तड़प कर रो रही थी, जबकि वो पुरसकून अंदाज में खड़ा उसे हिचकियां लेते वजूद को देख रहा था। मेरी जिंदगी खराब करते हुए क्या एक लम्हे के लिए भी तुम्हें मुझ पर तरस आया था? ये कहकर वो उसके करीब आया और उसकी ठोड़ी को पकड़कर बुलंद करते उसकी आंखों में देखकर बोला, वो तो एक जरा सा मजाक था। मेरा मकसद हरगिज आपका दिल दुखाना नहीं था। उसने एक छोटा सा एहतजाज किया। तुम्हारे मजाक ने ना सिर्फ मुझे तमाम खानदान वालों के सामने रुस्वा कर दिया था, उसके साथ साथ मैं खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। तुम्हारे इसी मजाक ने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरह डैमेज कर दिया है। अब तुम्हें ही इस सब का हिसाब देना होगा। मेरे अंदर जो वहशत भरी हुई है वो वहशत तुम्हें ही बर्दाश्त करनी होगी। वो इतने अजीब से अंदाज में बोला कि वो खौफ से कांपने लगी। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? उसने उम्मीद से उसके चेहरे की तरफ देखते पूछा। मेरी डिक्शनरी में माफी नाम का लफ्ज है ही नहीं। मैं आपकी नफरत को एक दिन मोहब्बत में तब्दील कर दूंगी। न जाने उसके दिल में क्या आया, वो ऊंची आवाज में बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। ना चाहते हुए भी उसने पलट कर देखा तो वो खौफजदा नजरों से अभी तक उसके चेहरे को देख रही थी। बाहर निकलने की बजाय वो फिर पलट कर उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसके बालों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे अड़ाया। मुझे ना तो तुमसे मोहब्बत है, ना तो तुमसे नफरत है, और ना ही कभी ये दोनों जज्बे अब मेरे दिल में तुम्हारे हवाले से पैदा हो सकते हैं। मुझे तुम्हारी जात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे तकलीफ में हो या खुश हो, मुझे कोई परवाह नहीं। ये कहकर वो एक बार फिर से उसका दिल जलाता हुआ वहां से चला गया था। और जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो यही है फर्क ना पड़ना। एक इंसान जो आपके लिए किसी वक्त में बहुत अहम रह चुका हो और वो आपको आपकी अहमियत का एहसास दिला चुका हो, बाद में वही इंसान आपके लिए कोई जज्बा ना रखे तो ये चीज आपको तोड़ देती है। और अभी वो इसी तोड़ फोड़ का शिकार हो गई थी। उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मगर उसके दिल में किसी किस्म का कोई अरमान नहीं था। उसकी बचपन की सहेली जवेरिया उसकी मोहब्बत से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो जानती थी कि जैन पर अपनी जान देती है। वो उसे जैन के हवाले से ही छेड़ रही थी। उसे इस बारे में पता नहीं था कि उसके और जैन के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। जब उसकी बातें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो वो चीखते हुए बोली, बस कर जाओ, खुदा के लिए बस कर जाओ, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। ये कहकर वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। जवेरिया ने उसे एक झटके से अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को थपकने लगी। क्या हो गया है मेरी जान? तुम मुझे काफी डिस्टर्ब नजर आ रही हो।
मैं तुमसे पूछना चाहती थी, मगर ये सोचकर खामोश हो गई कि तुम खुद मुझे इस बारे में बता दोगी। जवेरिया, सब खत्म हो गया है। हम दोनों के दरमियान उसके दिल में मेरे लिए किसी किस्म का कोई जज्बा नहीं। अब उसे मेरी जात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये शादी सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुका है। अगर वो तुम्हें माफ ना करता तो कब का तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर चुका होता। जवेरिया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी, मगर उसकी कोई तसल्ली काम नहीं कर रही थी। मेरे कानों ने उसके अल्फाज सुने हैं और अब उसके अल्फाज किसी पत्थर की तरह मेरे जहन पर लग रहे हैं। तुम नहीं जानती मैं कितनी तकलीफ में हूं जवेरिया। मैं कैसे उसके साथ सारी जिंदगी गुजारूंगी? मैं कैसे उसकी बेरुखी बर्दाश्त करूंगी? मैं तो बुरी तरह टूट जाऊंगी। तुम जानती हो कि ये इतना अरसा मैंने कितनी तकलीफ में गुजारा है। मैं जानती हूं मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपनी मोहब्बत से उसके दिल को जल्द मोम कर लोगी। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जात पर भरोसा रखो, देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जवेरिया उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेर रही थी और उसे दिलासे और तसल्लियां दे रही थी, जबकि वो एक बार फिर से अपने माजी में खो गई। आज से तकरीबन 4 साल पहले वो पाकिस्तान आए थे और वो भी अकेली। उसकी मां को अपने पाकिस्तानी रिश्तेदार पसंद नहीं थे। उसके बाकी बहन भाई भी बाहर अमेरिका में ही सेटल थे। उसकी बचपन से ही अपनी खाला जान से बात होती रहती थी। वो उनसे हद से ज्यादा प्यार करती थी और उनसे मिलने के लिए ही वो पाकिस्तान चली आई थी। यहां पर वो अपनी दादो जान के घर पर रुकी हुई थी। कुछ ही दिन यहां पर गुजारने के बाद उसे ये जगह बहुत अच्छी लगने लगी। सब लोग अपने अपने महसूस होते थे, जबकि उसके मुकाबले में अमेरिका की जिंदगी रोबोटों जैसी थी। पूरा दिन काम करो और फिर रात के वक्त आकर सो जाओ। वहां पर किसी किस्म की कोई तफरीह नहीं थी। अगर कभी दोस्तों के साथ घूमने के लिए चली जाती थी तो वहां का घुटनज़दा माहौल देखकर उसकी तबीयत खराब होने लगती। मगर पाकिस्तान में आने के बाद सारी चीजें एकदम से नॉर्मल हो गईं। उसे लगने लगा था कि जो जिंदगी वो जीना चाहती है उसे पाकिस्तान में मिल रही है। इसलिए 1 महीने के बाद वापस जाने के बजाय उसने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। उसके बाप ने 2 शादियां की हुई थी। उनकी एक बीवी उनके साथ अमेरिका में ही रहती थी, जबकि दूसरी बीवी पाकिस्तान में मौजूद थी। उसे शुरू शुरू में लगता था कि रशीदा बेगम उसके साथ बुरा सलूक करेंगी, क्योंकि वो उनकी सौतन की औलाद थी और खुद रशीदा बेगम की कोई औलाद नहीं थी। मगर जब उन्होंने इसे बेटी कहकर पुकारा और इसे अपने सीने से लगाया तो इसे काफी देर तक तो इस सब पर यकीन ही नहीं आया। जब उसने पुरजोश अंदाज में अपनी सगी मां को इस बारे में बताया तो वो नफरत का इजहार करते कहने लगी, मुझे तो पहले ही पता था कि वो औरत जादूगरनी है, वो तुम पर भी जादू कर देगी। मां की बातें सुनकर वो फौरन से बेजार हो गई थी। उसने यहां पर ही एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। यहां पर अपने सब कज़नों में उसे ज़ैन बहुत पसंद था। वो संजीदा मिजाज इंसान, ना किसी से ज्यादा गुफ्तगू करता था और ना ही उसे किसी की जाती जिंदगी में कोई दिलचस्पी थी। वो अपने काम से काम रखने वाला और अपनी जात में मगन रहने वाला एक बहुत ही खूबरू नौजवान था। अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद अब वो अपने दादा जान के साथ सरदारी के मामलात देखता था। हद से ज्यादा चालाक और ज़हीन था। बड़े बड़े मामलात को उसने चुटकियों में सुलझा दिया था। सब लोग ही उसकी तारीफ करते थे और उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। वो अपनी सब कज़नों के साथ एक दिन कमरे में बैठी हुई थी और ख़ानदान के लड़कों के बारे में बातें कर रहे थे। वो सब लोग कुछ लड़कों का मजाक बना रहे थे कि वो ठरकी हैं और हर किसी पर अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। जबकि इसके जहन में ज़ैन का ख्याल आया। उसने जवेरिया से सवाल पूछा कि ज़ैन किस तरह का शख्स है, तो वो तेजी से बोली, उनके बारे में हम ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हद से ज्यादा मासूम, अपने काम से काम रखने वाले और अपनी जिंदगी में मगन रहने वाले शख्स हैं।
مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی لڑکی ہوگی، وہ مجھے اس لائن کے معلوم نہیں ہوتے۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اس لائن کا نہیں ہے؟ میں یہ بات یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، مگر مجھے ایسا لگتا ہے۔ جویریہ نے فوراً سے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کی تھی۔ اگر تم کہو تو ہم انہیں چیک کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بیٹھی ہوئی اس کی باقی کزنز نے بھی حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ فوزیہ، جو کہ اس کی پپھو کی بیٹی تھی اور زین پر بری طرح سے فدا تھی، جب اس نے یہ بات سنی تو بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس نے اپنے دل کی حالت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا، یہاں تک کہ جویریہ بھی نہیں جانتی تھی کہ فوزیہ زین کو پسند کرتی ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، میں اس سے کال کروں گی اور اسے پھنسانے کی کوشش کروں گی۔ اگر تو وہ میرے جال میں پھنس گیا تو سمجھو کہ وہ بھی باقی لڑکوں جیسا ہے، اگر وہ میرے جال میں نہ پھنسا تو وہ شریف ہے، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ جویریہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ یار، یہ تو بہت زبردست آئیڈیا ہے، اس طرح سے تو اچھی خاصی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی۔ تہمینہ، جو کہ ان کزنوں میں سب سے بڑی اور سمجھدار تھی، جب اس نے ان کی باتیں سنی تو پریشانی سے کہنے لگی، دیکھو لڑکیوں، اس طرح کی بے وقوفی مت کرنا، اگر کسی بڑے کو پتہ چل گیا تو تم لوگوں کی کوئی عزت نہیں رہے گی، اور اگر زین بھائی کو ذرا سا بھی تم لوگوں پر شک ہو گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تہمینہ نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ دونوں بے فکری سے کہنے لگی، ارے باجی، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ ہم کسی کو شک نہیں ہونے دیں گے، اور ویسے بھی میں اپنی آواز تبدیل کر کے بات کرنا جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پرجوش انداز میں جویریہ سے زین کا نمبر لیا۔ اب دونوں اسے رات کے وقت بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فوزیہ بھی ان کے ساتھ ہی مل گئی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ پتہ لگانا تھا کہ زین کی زندگی میں کوئی اور شخص تو نہیں، تاکہ بعد میں وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ وہ بظاہر ان دونوں کی دوست بنی ہوئی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ نور سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ وجہ نور کی خوبصورتی، حد سے زیادہ ذہانت اور اس کی امیری تھی، جبکہ نور کے مقابلے میں اس کے بابا کا چھوٹے سے پیمانے پر ایک کاروبار تھا، اور وہ بھی جب ڈوبتا تو نور کے بابا ہی ان لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے، اور پھر سے ایک بار ان کا کاروبار چلنے لگتا تھا۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ رات کی تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جب زین کا فون بجنے لگا۔ بے ساختہ فون پر ایک نظر ڈالی، کوئی اجنبی نمبر معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر فون بند کر دیا اور پھر سے زمینوں کے معاملات دیکھنے لگا۔ آج کل وہ حد سے زیادہ مصروف تھا اور کسی سے بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ جس کو بھی کام ہوتا وہ اس کے پاس ہی آتا تھا۔ یار، اس نے تو اپنا نمبر ہی بند کر دیا، نور نے برا سا منہ بناتے کہا۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ زین بھائی مجھے اس لائن کے نہیں لگتے، جویریہ نے بے چینی سے کہا۔ فوزیہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جویریہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، مگر وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا، اس نے پھر سے زین کا نمبر ملایا۔ اس بار زین نے کال اٹھا لی۔ اس نے اپنی خوبصورت سریلی آواز میں اس کی خیریت دریافت کی۔ زین کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر پیاری آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی پڑھ چکا تھا اور اس کا سامنا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا، مگر آج تک کسی نے اسے اتنا امپریس نہیں کیا تھا جتنا امپریس وہ لڑکی اسے کر چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا اور اس کے بارے میں جاننے لگا۔ نور نے اسے سب کچھ جھوٹ بتایا تھا۔ کب صبح ہو گئی دونوں کو ہی اندازہ نہ ہوا۔ اس نے فجر کے قریب جا کر کال رکھی تھی اور پرجوش انداز میں جویریہ کے کندھے کو ہلانے لگی۔ اس نے اپنے کال کی ریکارڈنگ سیو کی ہوئی تھی۔ جویریہ برا سا منہ بناتے ہوئے اٹھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں صبح صبح اٹھا رہی ہو؟ نور پرجوش انداز میں اس کے گلے لگ گئی۔
तुम्हें पता है, आज मैंने पूरी रात ज़ैन से बात की और उसे एक बार भी शक नहीं होने दिया कि मैं नूर हूं। ये तुम क्या कह रही हो? वो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं, देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ये कहकर नूर ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जहां पर ज़ैन उस पर बुरी तरह से फिदा नजर आ रहा था। देखो, ये तो पहली ही कॉल में मुझ पर फिदा हो गया, और तुम कहती थी ये एक सख्त इंसान है और किसी से भी फ्री नहीं होता। वो फखर से अपना मसनूई कॉलर झाड़ते बोली। जवेरिया को अब थोड़ा बुरा भी महसूस हो रहा था। यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि सब लोगों के साथ सख्ती से पेश आने वाला इंसान किसी एक के लिए नरम जज्बात रखता हो, और वो लड़की तुम ही हो। अगर मेरी मानो तो सुबह ज़ैन भाई को जाकर बता दो कि कल रात तुमने ही उन्हें कॉल की थी। पागल तो नहीं हो गई? मैं उस ज़ैन जैसे इंसान से कभी ऐसी बात नहीं करूंगी, और वैसे भी वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं। अभी वैसे भी बहुत सा वक्त बाकी है। थोड़े ही अरसे के बाद अपनी मर्जी से किसी इंसान के साथ निकाह करूंगी। ठीक है, फिर मुझसे वादा करो कि दोबारा कभी भी तुम ज़ैन भाई से फोन पर बात नहीं करोगी। अभी और इसी वक्त उनका नंबर ब्लॉक कर दो। जवेरिया ने उससे वादा लिया, मगर उसने वादा करने से भी इनकार कर दिया। यार, अभी तो मैंने खेल शुरू किया है, बस थोड़ा सा अरसा चलने दो, फिर उनका नंबर ब्लॉक कर दूंगी। मुझे डर लग रहा है नूर, मुझे ये डर है कि तुम किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस जाओ। वो एक अनजाने अंदेशे के तहत बोली थी। नूर के मामले में तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। नूर अच्छी तरह से जानती है उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। वो मगरूर अंदाज में बोली। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। वो रोज रात को ज़ैन को कॉल करती, उसे अपने दिन के हालात में बारे में बताती, उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती। छोटी छोटी बातें होती। उसे हैरानी हो रही थी कि इस सारे अरसे के दौरान एक बार भी ज़ैन ने उससे कोई गलत बात नहीं की थी। अगर वो चाहता तो उससे गलत बात कर सकता था, मगर उसने हमेशा इसकी इज्जत की। मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूं। जो कुछ मेरे दिल में होता है वही मेरी जबान पर होता है। एक दिन ज़ैन ने उसे दो टोक अंदाज में बात करने का फैसला किया। उसने अभी तक इस लड़की का चेहरा नहीं देखा था और ना ही कभी तस्वीर की फरमाइश की थी, मगर उस लड़की के बात करने का अंदाज और उस लड़की की आवाज़ सुनकर इसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत हसीन है। उसे उस लड़की की नेचर भी बहुत अच्छी लगी थी। जी, आप कहें, क्या बात करनी है आपने? बड़ी मुश्किल से उसने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते कहा। उस वक्त उसने फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था। सामने ही उसकी बाकी तमाम कज़न्स भी बैठी थी। जवेरिया ने उसे ये सब कुछ करने से मना किया था, मगर वो नूर ही क्या जो अपनी दोस्त की बात मान ले। अपने दोस्त के खिलाफ जाकर उसने ये हरकत की थी। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूं। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं अपने घर वालों को आपके घर रिश्ता मांगने भेज दूं? उसने मासूम से अंदाज में सवाल किया था, जबकि दूसरी तरफ उसने तेजी से कॉल काट दी और पुरजोश अंदाज में अपनी कज़नों को देखते हुए कहा, अब मैं इसका नंबर ब्लॉक कर रही हूं। तहमीना को नूर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि बाकियों को भी उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई थी। यार देखो, तुम ज़ैन भाई के दिल के साथ खेल रही हो। ऐसा मत करो, वो बुरी तरह से टूट जाएंगे। मोहब्बत पर से उनका एतबार उठ जाएगा। ये बात तहमीना की छोटी बहन ने की थी। यार, मैंने तो सिर्फ शुगल मेले के लिए ही सब कुछ शुरू किया था, और वैसे भी उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये सब मैंने किया है। फौजिया ये सोचकर खुश हो गई थी कि चलो उसने नंबर ब्लॉक कर दिया, अब उसकी ज़ैन से किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। दूसरी तरफ ज़ैन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की इस तरह से उसका नंबर ब्लॉक कर देगी। उसे बुरा भी महसूस हो रहा था और उसे इस लड़की पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने नंबर की तमाम डिटेल्स निकलवाई। जब उसे हकीकत के बारे में पता चला, उसे लगा सातों आसमान उसके सर पर गिर गए हों।
वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अमेरिका से आई उसकी कजन थी, जो उसके ही घर में रहती थी। उसी रात फौजिया उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई। अब आजकल घर पर ज्यादा नहीं ठहरते, खैरियत तो है? फौजिया ने उसे नॉर्मल से अंदाज में सवाल किया था। तुम्हें उससे क्या मसला, अपने काम से काम रखो। जैन का लहजा ना चाहते हुए भी तल्ख हो गया था, क्योंकि आज उस पर जो राज आश्कार हुआ था उसके बाद उसे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आप किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? मैंने तो बस आपसे नॉर्मल से अंदाज में सवाल किया था। देखो फौजिया, मैं इस वक्त किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा दिमाग खराब ना करो और मेरे कमरे से निकल जाओ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी, जबकि उसका दिमाग गुस्से से घूम गया था। मत लो मेरे सामने उस घटिया चीज का नाम। मुझे मोहब्बत पर कोई एतबार नहीं, और हर मोहब्बत करने वाला इंसान पर मुझे शक है। आपके साथ अगर नूर ने गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ही गलत करेंगे। फौजिया ने अपने आंसू साफ करते मसनूई बेचारगी से कहा था। उसके यहां पर आने का मकसद ही यही था कि वो उसे नूर की हकीकत के बारे में बता देगी, मगर वो नहीं जानती थी कि जैन पहले ही जान चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? फौजिया ने पुरजोश अंदाज में उसे बताना शुरू कर दिया कि कैसे नूर ने सब लड़कियों के सामने उसको फंसाने की बात की थी और सब लड़कियों के सामने ही उसे कॉल की थी। जैन को लग रहा था जैसे उसने सारी कॉल वो लड़कियों के सामने ही करती रही हो। जो बातें उसने नूर से की थी, अब वो सारी बातें उसे याद आ रही थी। शर्मिंदगी के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। उस लड़की को मैं जान से मार दूंगा, वो हलक के बल चिल्लाया। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो अपने दादा जान के कमरे में गया। दादा जान, मुझे नूर से निकाह करना है, अभी और इसी वक्त, उसने दो टोक अंदाज में कहा था। क्या हो गया है बरखुरदार? अपने पोते को इस लहजे पर वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गए, क्योंकि जैन ने आज से पहले कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और अपने दादा जान के सामने वो हमेशा अपनी नजरें झुका कर रखता था। मगर आज वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था, मैं उस लड़की से निकाह करना चाहता हूं। दादा जान, अभी और इसी वक्त आप प्लीज मुझसे वजह ना पूछें, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूं। अब जल्दी से मौलवी का इंतजाम करें। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, थोड़ी ही देर के बाद मौलवी यहां पहुंच जाएगा। ये बात तो वो जानते थे कि जैन कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता, और अगर उसने ये फैसला किया है तो जरूर कोई बड़ी बात हुई है, और वो अपने पोते को नाराज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वही तो था जो सरदारी के सारे मामलात देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर मौलवी पहुंच गया। नूर, जो कि अपने कमरे में बैठी जैन की हालत पर हंस रही थी, बाहर से आने वाली आवाजें सुनकर परेशान हो गई। रशीदा बेगम तेजी से उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसका बाजू पकड़कर गुस्से से पूछने लगी, तुमने जैन के साथ क्या किया है? उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मां उससे ये सवाल करेगी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो क्यों तुमसे निकाह कर रहा है? वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। दादा जान ने मुझे बताया है कि अभी और उसी वक्त उसने मौलवी बुलाने के लिए कहा है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? उसने बेचैनी से पहलू बदला था। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं, मगर मैं उससे निकाह नहीं कर सकती। ये बात तुम दादा जान से जाकर करो। जब वो उनके कमरे के अंदर दाखिल हुई तो जैन पहले से ही वहां बैठा था। नूर को अंदर दाखिल होता देखकर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया। उसने कभी भी अपनी अमेरिका से आने वाली कजन की तरफ गौर नहीं किया था, मगर आज पहली बार वो उसे सर से लेकर पांव तक देख रहा था। वो लड़की चेहरे से भी बहुत मासूम नजर आती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बातों से मासूम लगती थी, लेकिन उसके अंदर कितना घन भरा हुआ था, इस बात का अंदाजा जैन को आज हुआ था। दादा जान, ये क्या हो रहा है?
उसने अपने दादा से बेचैनी से पूछा। ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने क्या किया है। मैं आपको बताता हूं दादा जान। ये कहकर जैन ने उसकी एक एक बात दादा जान को बता दी। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। दादा जान मुझे माफ कर दें, मेरा मकसद हरगिज इनका दिल दुखाना नहीं था, हम तो वैसे ही मजाक कर रहे थे। दादा ने उसे हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा किया। थोड़ी ही देर के बाद तुम्हारा निकाह जैन से हो जाएगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी नजरों के सामने से ओझल हो जाओ। उन्होंने उसे वहां से चले जाने का कहा। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरी हवेली में फैल चुकी थी और यह खबर फैलाने वाली भी फौजिया थी। वो जैन को हासिल तो नहीं कर पाई, लेकिन नूर को बदनाम तो कर ही सकती थी, और अब वो यही काम कर रही थी। उन दोनों का निकाह हो चुका था। वो उसके कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जब वो दरवाजा खोलकर गुस्से से अंदर दाखिल हुआ, उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। अभी और इसी वक्त यहां से उठो, उसने नूर को नफरत से देखते कहा। वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे, मगर जैन को अब उसकी किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। जैन, मैं सच में आपसे मोहब्बत। इससे पहले कि वो कुछ कहती, जैन का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम एक घटिया औरत हो जिसने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, और अब सारी जिंदगी तुम इसी मोहब्बत के लिए तरसती रहोगी। तुम्हें कभी मोहब्बत नसीब नहीं होगी। प्लीज ऐसा मत करें, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं जानती हूं मैंने गलती की है, लेकिन सच ये है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूं। जैन ने उसे कंधे से पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार समझाऊं, पसंद करने में और मोहब्बत करने में जमीन आसमान का फर्क है। पसंद तो इंसान को कुछ भी आ सकता है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक से होती है, जो मैंने तुम्हारे उस रूप से की थी जो थूकने के भी काबिल नहीं था। वो उसका बाजू पकड़कर उसे खींचता हुआ दरवाजे से बाहर फेंक चुका था। तुम्हारी जगह मेरे कमरे में नहीं, बल्कि मेरे कमरे के दरवाजे पर है। अब सारी जिंदगी तुम इसी दर पर ठहरी रहोगी, मगर मैं कभी भी अपने दिल का दरवाजा तुम पर नहीं खोलूंगा। वो एक बार फिर से उसे जलील कर चुका था। वो वहां पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। जब रशीदा बेगम छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आई। मैं जानती हूं तुमने उसके साथ मजाक किया था, मगर यह अमेरिका नहीं है, और ना ही यहां पर अमरीकी रहते हैं जो कि इस मजाक को कुछ ही अरसे के बाद भूल जाएंगे। तुमने एक पाकिस्तानी मर्द की अना के साथ खेला है, जिसका हिसाब तुम्हें देना ही होगा। चलो अब जल्दी से उठो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। अपनी बेटी के बिखरे वजूद को वो समेटती वहां से लेकर अपने कमरे में चली आई। पूरी रात वो अपनी मां के गले से लगकर रोती रही थी। अगले दिन उसे पता चला कि वो हवेली छोड़कर ही चला गया है। अब वो वहां पर अकेली थी। उसने अमेरिका वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन दादा जान ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने उसका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया था। इसके अलावा उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं थी। अगर कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती तो दादा जान उसे अपनी सरपरस्ती में अस्पताल लेकर जाते और उसका यूं पहरा देते। अगर उन्होंने एक लम्हे के लिए भी उसे नजरें हटाई तो वो वहां से भाग जाएगी। ये सब कुछ उसे बहुत अजीब लगता था। तकरीबन 2 साल के बाद वो पाकिस्तान वापस आया, मगर एक बार भी उसने नजरें उठाकर अपनी बेगम को नहीं देखा। वो रोते हुए उसके कमरे में पहुंची। आखिर कब तक आप मुझसे इसी तरह से नफरत करते रहेंगे? खुदा के लिए मुझ पर इतना जुल्म मत करें, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने भी तो मुझ पर जुल्म किया था, मैं भी तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम भी बर्दाश्त करो। वो 2 टोक लहजे में बोला, और यूं बगैर इजाजत के मुंह उठाकर मेरे कमरे में मत आया करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं आपकी बीवी हूं, वो तड़प कर बोली थी, मगर मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। उसने नॉर्मल से अंदाज में कहा, तो फिर मुझे तलाक दे दें। बेसाख्ता उसका हाथ उठा।
वो उसे दूसरी बार थप्पड़ मार रहा था। तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो खुद अपनी इज्जत नहीं करती। जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, नफरत करता हूं, तो क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हो? वो दोबारा लौटकर बाहर नहीं गया था, बल्कि पाकिस्तान में फिर से अपना काम करने लगा था। उसने सरदारी भी छोड़ दी थी और अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। दादा जान को उसका ये फैसला बहुत बुरा लगा था, मगर जब उसने दादा जान को ये बताया कि अगर वो सरदारी करेगा तो उसे हवेली में ही रुकना पड़ेगा और वो इस लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहता, तो वो खामोश हो गए। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उनके रिश्ते को 4 साल बीत चुके थे। वो जो सोच रही थी उसे ज़ैन से नफरत हो जाएगी, वो अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। वो इंसान उसे अपने दिल के बहुत करीब लगता था। वो उसकी कुर्बत की मुंतज़िर थी, उसकी एक रहम की नज़र की भीख मांगती थी, मगर वो जालिम इंसान उसे देखता तक नहीं था। और जब इतने अरसे के बाद उसने रुखसती की बात की तो वो भी इसलिए क्योंकि वो उसे तकलीफ देना चाहता था। जब वो इस हवेली से रुखसत हो रहे थे तब वो अपनी सौतेली माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोई। अम्मी जान, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाए और इस इंसान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, वरना इस तरह से जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और मुझे अपने लिए मौत का रास्ता चुनना पड़ेगा। उसकी ये बात ज़ैन ने सुनी थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़का था। अगर उसे इस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता था तो वो उसकी जुदाई का जिक्र सुनकर बेचैन क्यों हुआ था? ज़ैन ने बेसाख्ता खुद से सवाल किया, मगर फिर इस बात को जहन से झटकते अपने दादा जान की तरफ मुतवज्जो हो गया और उनसे गले मिलने लगा। वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। कश्मीर में उसका एक बहुत ही बड़ा घर था जहां पर वो एक बिजनेस के सिलसिले में आया था और 1 महीना यहां पर रुकने का इरादा रखता था। वो रोज सुबह जाता और रात को वापस आता और खामोशी से सो जाता था। उसकी अपनी बीवी के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं होती थी। वो पूरा दिन घर के काम करती रहती और कभी अगर बहुत ज्यादा दिल घबराने लगता तो अपने घर से थोड़े ही फासले पर बने पार्क में चली जाती। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। माजी की गलतियां उसे फिर से याद आने लगी थी। उसका दिल घबरा रहा था और उसे वहशत होने लगी थी। कुछ भी सोचे समझे बगैर वो घर से निकल गई और तेज तेज चलने लगी। वो नहीं जानती थी कि कहाँ पर जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ फरार चाहती थी उन तमाम यादों से। ख्याल तो उसे तब आया जब उसने देखा कि वो इस वक्त एक वीरान जगह पर मौजूद थी। दूर दूर तक किसी भी घर का कोई नामो निशान नहीं था। उसे ये भी नहीं याद था कि वो किन रास्तों से आई है। दूसरी तरफ जब ज़ैन घर पहुंचा और उसे वो कहीं दिखाई ना दी तो उसने बेचैनी से नौकरानी से सवाल किया। अभी कल रात उसने एक डरावना ख्वाब देखा था जिसमें वो उससे दूर हो जाती है। इस ख्वाब के बाद वो बहुत बेचैन था और आज काम से भी जल्दी वापस आ गया था। साहब जी, वो तो थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकली थी। क्या मतलब है घर से बाहर निकली थी? कहां पर गई है तुम्हारी बीबी साहिबा? वो हलक के बल धाड़ा। साहब जी, वो तो रोज थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती थी और फिर वापस आ जाती थी। आज पता नहीं क्यों वापस नहीं आई। तुमने मुझे एक बार भी इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। वो फिलहाल उससे बहस नहीं कर सकता था, इसीलिए तेजी से बाहर निकला। अपने गार्ड्स के साथ वो उस पूरे इलाके में तलाश कर रहा था, मगर वो कहीं नहीं थी। थोड़ी ही देर के बाद उसे गांव के लोगों से खबर मिली कि उन्हें जंगल में एक लाश मिली है जो कि किसी लड़की की है। एक लम्हे के लिए उसका दिल डूब गया था। वो तेजी से भागता हुआ वहां पर गया। दरअसल वो लड़की पहाड़ से गिरी थी और मर गई थी। वो अपने दिल में शिद्दत से दुआ कर रहा था कि वो लड़की इसकी बीवी ना हो। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। उसे उसकी माफियां भी याद आ रही थी। काश वो उसे माफ कर देता। उसने अपने दिल में क्यों नफरत भर कर रखी
क्यों उसने अपनी अना को सर उठाने दिया? अगर वो जरा सी नरमी इख्तियार करता और उसे बख्श देता तो आज वो दोनों पुरसकून होते और उसकी जान ना जाती। इस तरह की कई बातें उसे परेशान कर रही थी। वो उन लोगों के झुरमट की तरफ खाली दिमाग के साथ बढ़ रहा था कि उसे नूर की आवाज सुनाई दी, जो भटकती भटकती वहां पर पहुंच गई थी। उसने पलट कर देखा तो वो सही सलामत पीछे खड़ी थी। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उसकी तरफ भागा और उसे अपने सीने से लगा लिया। बार बार उसके चेहरे को छूता और कभी उसे अपने गले से लगा लेता, जिसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि वो बिल्कुल ठीक है। मुझे माफ कर दो नूर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दे दी। मैं तुमसे वादा करता हूं दोबारा कभी तुम्हें जहनी टेंशन नहीं दूंगा। तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। बस मुझसे वादा करो तो मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। नूर, मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। तुमने भी तो मेरे साथ गलत किया था। वो उससे माफी मांग रहा था, उसके साथ साथ उससे शिकायतें भी कर रहा था, क्योंकि इस बात से वो भी इनकार नहीं कर सकता था कि वो इस लड़की से बेतहाशा मोहब्बत करता है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपका दिल दुखाया था। एक छोटे से मजाक के चक्कर में मैंने ना सिर्फ आपके बल्कि अपने भी इतने कीमती साल जाया कर दिए। वो भी सर झुकाए रोए जा रही थी। जैन ने उसके हाथ मजबूती से पकड़े और उसे यकीन दिलाते कहा, अब हम अपनी जिंदगी एक पुरसकून अंदाज में गुजारेंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें होंगी। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की थी और ना ही कभी कर सकता था। मैं सिर्फ और सिर्फ तकलीफ में था, इसीलिए तुमसे दूर भागता था। जानता था कि तकलीफ में तुम्हें भी दुख पहुंचा दूंगा, मगर अब मैं ठीक हो गया हूं। जैन ने उसे बताया कि जब उसे ये खबर मिली थी कि एक लड़की की लाश मिली है और दूसरी तरफ नूर भी लापता थी, तो वो बहुत ज्यादा सहम गया था। उसे लग रहा था उसकी दुनिया उजड़ने वाली है, मगर नूर को अपने सामने देखकर उसे जिंदगी की नवीद मिल गई। उसके साथ ही उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया था कि नूर के बगैर वो अधूरा है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े अपने उस घर की तरफ रवाना थे, जिसे अब वो खुशियों का आशियाना बनाने वाले थे। नफरतों के बादल छट चुके थे। अब सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें उनकी मुंतजर थीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।